میرے معبود، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ یوسف تیرے جمال کا آئینہ تھا، میں آئینہ دیکھا کرتا تھا تاکہ تجھے دیکھ سکوں، وگرنہ خدا آئینہ تو قابل دید نہیں ہوا کرتا۔ میں اگر یوسف کو عزیز رکھتا ہوں تو محض اس لیے تاکہ عشق کا تجربہ کر سکوں، وگرنہ میرا معشوق تو ہے۔ میں یوسف کی محبت سے مفہوم عشق کا ادراک کرتے ہوئے یوسف سے گزر کے تجھ تک، تو جو معبود حقیقی ہے، پہنچتا ہوں۔ پروردگار، یوسف تو تجھ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ کوئی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ بابا خاموش ہو گئے ہیں، اب ان کی آہو بکا کی آواز نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں انہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ لیا، جی بابا، کوئی کام تھا؟ اپنے بھائیوں کو یہاں بلاؤ، مجھے ان سے ضروری کام ہے۔ سب یہیں پر ہیں بابا۔ آپ کون سے کیا کام ہے؟ مجھے کہیں بٹھا دو۔ میرے ساتھ آئیے دادا جان۔ بیٹھ جائیے بابا۔ بیٹھ جاؤ۔ تمہارے سارے بھائی موجود ہیں؟ جی بابا، سب موجود ہیں۔ خوب غور سے سنو اور میرے سوالوں کا جواب دو۔ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم لوگ مصر پہنچے تو کیا واقعہ پیش آیا؟ آیا یہ طے نہیں پایا تھا کہ احتیاط کے ساتھ جاؤ گے اور خاموشی کے ساتھ واپس آؤ گے؟ پھر آخر کیسے پکڑے گئے؟ عزیز مصر نے سپاہی لگائے ہوئے تھے جو ہماری ہی تلاش میں تھے، اور بالآخر وہ ہمیں پہچان ہی گئے۔ تم لوگوں سے عزیز مصر کا ملنے پر اتنا مصر ہونا آخر کیوں؟ جب ہم بھائی وہاں پہنچے تو وہ نہایت مہربانی و محبت اور تواضع سے پیش آئے۔ بالخصوص وہ بنیامین پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھے۔ بابا، کھانے کے وقت بھی ہر کوئی اپنے ماجائے کے ساتھ بیٹھا، یعنی عزیز مصر کی خواہش تھی۔ اور بنیامین اکیلا رہ گیا تو عزیز مصر نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ساتھ کھانا تناول کیا۔ وہ آپس میں کافی دیر سرگوشیاں کرتے رہے، کافی دیر، کبھی ہنستے تو کبھی رونے لگتے تھے۔ عزیز مصر بنیامین کے ساتھ ہنس اور رو رہے تھے؟ نہیں، صرف بنیامین رو رہا تھا۔ ہم نے اس سے جب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ آپ کے فراق میں رو رہا ہے۔ محض چند روز کی جدائی پر رونا، وہ بھی روبرو عزیز مصر، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا بابا، اور پھر اچانک بنیامین گرفتار ہو گیا۔ میرے لیے قلم، دوات اور چمڑے کا ایک ٹکڑا لے کر آؤ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عزیز مصر کے رویوں میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ وہ یا تو یوسف کے متعلق کچھ جانتے ہیں یا پھر تمہارے بھائی کی تلاش میں ضرور تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں۔
जाओ और या तो अजीज मिस्र या फिर जिससे भी मुमकिन हो अपने भाई के बारे में तहकीक करो। मिस्र में मेरे बच्चों कुछ न कुछ तो जरूर है। अब वहां जाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, और वहां जाकर कहीं भी तो क्या, ये कहें कि हमारे भाई के जुर्म से दरगुजर फरमाए, या ये कहें कि एक बार फिर हमें गंदुम दे दे। ये लीजिए दादा जान, ये लीजिए। मैं अजीज मिस्र की खिदमत में एक खत लिखे देता हूं। तुम लोग ये खत भी ले जाओ और अपने भाई के बारे में भी पूछगछ करो। मैं तुम लोगों की बातों से जो कुछ समझा हूं उसका समझना तुम लोगों के लिए मुश्किल है। शमून, बेटा शमून, लिखो। अस जानिब बंदे खुदा याकूब अजीज मिस्र युजारसीफ की खिदमत में खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर बलाएं नाजिल की और मुख्तलिफ आलाम व मसाइब के जरिए हमारी आजमाइश ली है। मेरे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीउल्लाह को कुर्बानगाह तक ले आया ताकि उनको आजमाए। इतने से उनकी भला क्या कीमत होगी? क्या इसके एवज वो हमें गंदुम दे देंगे? कुछ ना होने से तो बेहतर है। वो हमें मुफ्त में तो गंदुम देने से रहे, या तो हमारे पास दरहम व दिनार होने चाहिए या फिर कोई माल मवेशी, और दरहम व दिनार है नहीं। हाँ, कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। हाँ, कुछ खा ले और थोड़ा बहुत ऊन पड़ा है जो हमने बेचा नहीं है। कहो किसी ने खरीदा नहीं, ना कि बेचा नहीं। थोड़ा बहुत मैंने और मेरी बहुओं ने मिलकर धागा भी बुना है, शायद तुम लोगों भी काम आ जाए। इन सब के एवज तो वो हमें गंदुम नहीं देंगे। हमारे मालिक की कोई कद्र कीमत नहीं, लेकिन कोई चेहरा नहीं, खुदा से कुछ बईद नहीं। शायद अजीज मिस्र हमें गंदुम और बिन्यामीन दोनों साथ ही दे दे। हाँ, वाह क्या खुशफहमी है तुम्हारी। लुत्फ खुदा से नाउम्मीद मत हो यहूदा। जल्दी करो। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार, खुदा निगहदार, हमारे खुदा लिए दुआ निगहदार। कीजिएगा बाबा, दुआ कीजिएगा हम खुशखबरी के साथ वापस लौटे। यूसुफ के बारे में पूछकर जरूर करना। मेरा ये खत अजीज मिस्र तक पहुंचा देना। बिन्यामीन को लिए बगैर किरान वापस मत आना। खुदा तुम्हारा निगहबान, खुदा निगहदार। दरूद खुदावंद हो अजीज मिस्र युजारसीफ बुजुर्ग पर। दरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दरूद बर बिनारूस खूब व मेहरबान। कहाँ हो बिनारूस? अजीज मिस्र की इनायत के जेर साया जिंदगी बसर कर रहा हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपको जनाब फरमा रवा की यहाँ तशरीफ आवरी की इत्तला दे सकूँ। फरमा रवा? जी। यहाँ ताजुब है। दरूद बर फरमा रवाए मुक्तदर मिस्र। दरूद बर नबी खुदा। खुश आमदीद। खुश आमदीद बानू। क्या बात है, युजारसीफ हकीम ने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया। यकीनन नई मसरूफियात जनाब युजारसीफ को मशगूल कर रखा है। अगर हमें मालूम होता कि जनाब युजारसीफ को उनके बीवी बच्चे अपने गिर्द इतना मसरूफ रखेंगे कि वो हमसे गाफिल हो जाएंगे तो हम आपको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने की इजाजत ही न देते। लेकिन फिलहाल तो उन्हें नई फिक्रात ने घेरा हुआ है जनाब फरमारवा। तो गोया हमारा अंदाजा सही है। नहीं बानो हुजूर,
मेरा मकसद वो हरगिज नहीं। अजीज मिस्र की नई परेशानियां उनके भाइयों से मुतालिक हैं। आपके भाई? जी हाँ, लुत्फ और इनायात परवरदिगार से बरसों बाद मुझे मेरे भाई मिले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। आपके वालिद बुजुर्गवार याकूब नबी की क्या खबर है? अभी तक मुझे उनकी जियारत नसीब नहीं हुई है, लेकिन अपने भाइयों से 2 बार मुलाकात कर चुका हूँ। वो लोग इस वक्त किनान गए हुए हैं। आप उन सबको यहाँ मिस्र क्यों नहीं बुला लेते? यहाँ आप उनकी रिहाइश का बेहतरीन और मुनासिब इंतजाम कर सकते हैं। इरादा तो यही है, अलबत्ता अगर इजाजत जनाब अखनातून हो तो। ये तो बायस सद इफ्तिखार होगा कि जनाब याकूब नबी अपने मुबारक कदमों से हमारी इस सरजमीन को इज्जत बख्शें। मिस्र के मालिक व मुख्तार आप हैं और इजाजत हमसे तलब कर रहे हैं। जल्द अज जल्द उन्हें मिस्र बुलवा लीजिए। हम तो समझे कि शायद इश्क आसनात के साथ साथ इश्क जुलेखा की मसरूफियात में भी इजाफा हो गया है जो आप हमें बुला बैठे। फिलहाल तो वो राजो न्याज में मशगूल हैं दूसरे माशूक के साथ, और किसी तरफ मुतवज्जा नहीं होना चाहती। वो बहुत गलत कर रही हैं। युजारसीफ खुदा से जुदा तो नहीं। जुलेखा को यहां बुलाइए ताकि हम जान सकें कि असल मामला क्या है। अपने खानदान की रिहाइश के लिए किस जगह का इंतखाब किया? एक खित्ता है बना में कुर्शन, नजदीकी है मिनफीस के। नील के नजदीक का जरखेज खित्ता। हाँ, ये जगह निहायत मुनासिब रहेगी। मैं आपके इंतखाब की दाद देता हूँ, बशर्त ये कि जनाब युजारसीफ अपने वालिद और भाइयों की मसरूफियात में गुम होकर हमें भूल न जाएं। हमें आपकी दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हम पर ऐसा सितम मत कीजिएगा। ये तो जनाब फरमारवा की मोहब्बत है। आप तो बिल्कुल फरिश्तों की तरह हो गई हैं जुलेखा। लगता है आपको पूरी उम्र इबादत में ही बसर करनी है। पहले आप आमून की देवी थी तो आमून की परस्तिश किया करती थी, और अब जब से यकता परस्त हुई हैं तो खुदा यकता की इबादत में रहती हैं। हम चाहते हैं कि आज जुलेखा को अहले अर्श से हटाकर अहले फर्श का हमनशीं कर दें। इसकी जरूरत नहीं जनाब फरमारवा। मैं अभी तक दुनिया और इस फानी जिस्म के हिसार से बाहर नहीं निकली। आप हुक्म कीजिए, कनीज हासिल है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों अर्श नशीनों के साथ तो राहो रस्म बढ़ाई जा रही है, लेकिन खाक नशीनों से गफलत बरत रही है? आप जिस खाकी की बात कर रहे हैं वो खुद मस्जूद मलाइक है। जुलेखा की गफलत से उनकी अजमत में कोई कमी नहीं आ सकती। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये गफलत अब तूल पकड़े। आप जनाब युजारसीफ की हमसे क्यों कबूल नहीं करते? अच्छी बात है। हम आपसे बाकायदा तौर पर अजीज मिस्र जनाब युजारसीफ के लिए ख्वास्तगारी करते हैं। अगर जनाब फरमारवा और बानो हुजूर की इजाजत हो तो बानो जुलेखा को चंद रोज सोचने की मोहलत दी जाए। सोचने की मोहलत तो है, लेकिन रद्द करने की इजाजत हरगिज नहीं। हमें मस्बत जवाब चाहिए। आप दोनों ही हमें निहायत अजीज हैं। हम नहीं चाहते कि अब ये मिलाप ज्यादा अरसे इल्तिवा में रहे। जुलेखा जा सकती है।